Hopefully all of you are keeping well. Okay, so today we are going to start chapter 8 from class 11, Cell the Unit of Life. This chapter is carrying the nice good weightage for the board exam as well as the NEET exam. It is having 10% weightage for the NEET exam, and every year 6 to 7 questions are coming from this chapter. From the cell biology and cell divisions all include. Here in this chapter we are going to take a look for the discovery of cell. What is the definitions of the cell? The theory of the cell. We will take an overlook of the cell organelles and types of cell on the basis of their shape, size and nuclear structure. So here we are going to take a look on discovery of cell. Discovery of cell means first name is appearing in the mind, that is Robert Hooke, a British scientist who discovered the cell in the year 1665. He find this special structure you can see here, which is somehow look like मधुमक्खी का छत्ते की तरह. देखो, somehow it is looking like bee hives. Okay, so ये स्ट्रक्चर उनको दिखा था कॉक के अंदर. ये कॉक क्या होते हैं? एक टेनिस खेलने वाला कॉक नहीं है ये. जैसे यू माइट हैव सीन दैट मीन्स कांच का जो होम्योपैथी मेडिसिन्स होते थे ना पहले, उसका कैप में भी रहते थे, वुडन कैप, उसको कॉर्क कैप कहा जाता था. सो ही ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर मीन्स पोर्सेस, दिस पर्टिकुलर टाइनी पोर्सेस इन अ पीस ऑफ वुड और पीस ऑफ कॉक. यहाँ जैसे मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू ड्रॉ दैट स्ट्रक्चर. ऐसे ही कुछ बी हाइव्स की तरह, हानीकोम की तरह कुछ ऐसे वाला चीज उनको दिखाई दिया था. ओके, उनके पास उतना स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप नहीं था जिससे वो सेल को प्रॉपरली डिफाइनिंग स्ट्रक्चर देख सके. उनको सिर्फ एक बी हाइव्स की तरह कुछ स्ट्रक्चर दिखा था. यू कैन सी हेयर ऑल्सो दैट स्ट्रक्चर. ओके, फर्दर कुछ साल बाद क्या हुआ? 1674 एंटनी वैन लीeuwenhoek उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लिविंग सेल कैसी वो वाटर के ऊपर पॉन्ड में, वो क्या बोलते हैं पॉन्ड को, तालाब में उन्होंने कुछ एल्गी देखा, स्पाइरोगाइरा का छोटे छोटे सेल्स उनको दिखाई दिया. एंड दैट वाज द फर्स्ट लिविंग सेल observed by human, and that observations has been done by scientist Leeuwenhoek in the year 1784. ईयर याद रखो, साइंटिस्ट का नाम याद रखना जरूरी है. सो पहला सेल किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने. कौन सी ईयर में? 1665. बट वो वाला सेल डेड सेल था, क्योंकि उनको तो एक पीस ऑफ वुड में दिखाई दिया था ना, कॉक के अंदर. 1674 में लीeuwenhoek ने एल्गी में, स्पाइरोगाइरा में जो सेल ऑब्जर्व किए थे वो था लिविंग सेल. सो क्लियर दिस 2 पॉइंट्स. इफ इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन who has discovered the living cell and who has discovered the dead cell, then it is okay. You have to mention the specific scientist name. और अगर ऐसे पूछा कि who discovered the cell, nothing specified, so you can write the Robert Hooke only. Okay, so let's carry on. Next, what is cell theory?
Cell theory, first of all, you have to remember the name of the scientist and year. Cell theory proposed by whom and in which year. Then we are going for the main features of the cell theory. यहाँ पे 3 मेन फीचर्स रहते हैं. क्या क्या? कि हर एक ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं. व्हाट इज दैट? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर composed of one or more cell. All organisms are composed of one or more cell. Okay? हर एक organisms एक या एक से ज़्यादा सेल से बनते हैं. जैसे यू थिंक अबाउट द एमीबा, बैक्टीरिया, उन लोगों की बॉडी में तो एक ही सेल है ना, बट सारे मेटाबॉलिक फंक्शन उसी एक सेल में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाते हैं. ओके. अदर्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, हम लोग सब है, बड़े एनिमल्स है, हायर ऑर्गेनिज्म सब है, सो उनमें मोर देन एक सेल होते हैं. बट चाहे कुछ भी हो, लिविंग है तो उसमें सेल होगा ही. सो फर्स्ट पॉइंट व्हाट इज डिस्क्राइबिंग all organisms of the compound of one or more all organisms are composed of one or more cell. Next, what it is defining? It is defining that the cell is the ultimate basic unit of the all organisms. Okay. Next, it is providing the basic structure and functions. Next, what it is saying? All cells comes from the pre-existing cells. All cells comes from the pre-existing cells. सारे सेल्स कहाँ से आते हैं? पुराने सेल से. ओल्ड एग्जिस्टेंट सेल्स है उसी से डिवाइड होके सेल डिविजन्स के माध्यम से न्यू सेल्स जनरेट होते हैं. ओके, आई होप इट इज क्लियर. नाउ वी आर गोइंग टू टेक द ओवरव्यू ऑफ द सेल. ओवरव्यू ऑफ द सेल में क्या देखेंगे? सेल किससे कंपोज्ड होते हैं, सेल में क्या क्या सेल ऑर्गेनेल्स है. ओके, चाहे वो प्लांट सेल होगा तो उसका फीचर्स कैसा होगा, वो अगर एनिमल सेल होगा तो उसका फीचर्स कैसा होगा, है ना, उसका साइज क्या है, फंक्शंस क्या है. अब यहाँ पे और एक चीज हमको देखना है कि एक ही टाइप के सेल ग्रुप में टिश्यूज बनाते हैं और वही काइंड ऑफ टिश्यूज टुगेदर क्या फॉर्म करता है? ऑर्गन फॉर्म करते हैं. उसी ऑर्गन से डिफरेंट ऑर्गन्स टुगेदर फॉर्मेशंस के बाद ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं और उसी ऑर्गन सिस्टम से फर्दर एक इंडिविजुअल डेवलप होते हैं, है ना. यहाँ पे हम और एक चीज देखेंगे. व्हाट इज दैट? दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल. देखो, you are having in NCERT book also, even in some other reference books also having these pictures. Okay, different types of cells. इन लोगों का सबका काम अलग है, सबका स्ट्रक्चर भी अलग है. दे ऑल आर हैविंग डिफरेंट फंक्शंस एंड डिफरेंट न्यूरो है. सो ये नर्व के लिए काम करेंगे. ये आरबीसी है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम्स में ही काम करते हैं. ओके, ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम्स में ही काम करते हैं, डब्ल्यूबीसी. ओके, ये तुम्हारी नैरो एपिथेलियल सेल्स है. सो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. ओके, so next on the basis of the structure, as I said in the beginning कि हम यहाँ पे types of cells भी देखेंगे. types of cells में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे different types of cells हैं on the basis of nuclear structure. nuclear structure in the sense किसी में proper nucleus होगा, किसी में नहीं होगा. prokaryotic cell. prokaryotic means क्या? pro का मतलब क्या है? प्रो मीन्स इनकम्प्लीट. यहाँ पे प्रो मतलब जिसका कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं है. सो प्रोकैरियोटिक सेल्स किस में रहेगा? लोअर ऑर्गेनिजम्स में. सी हेयर, बैक्टीरिया में है, ब्लू ग्रीन एल्गीज में है, लोअर ऑर्गेनिजम्स में है. यूकैरियोटिक सेल्स कहाँ पे रहेंगे? हायर ऑर्गेनिजम्स में रहेगा. इसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस होगा. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल. देखो, इसमें न्यूक्लियस का प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा. और प्रोकैरियोट्स की सेल्स देखो कैसे होते हैं, है ना. नेक्स्ट, यूकैरियोटिक सेल्स कहाँ पे मिलते हैं? यहाँ पे इट हैज मेंशन plants and animals,
or higher organisms structure you can see here. Okay, by seeing the structure only we can say what is the plant cell and what is the animal cell. Plant cell quite हेक्सागोनल टाइप की है और एनिमल सेल्स में देखो एक ओवल शेप क्रिएट करता है. सो डेफिनेटली इसमें सेल वॉल होते हैं प्लांट सेल में. एनिमल सेल में वो सेल वॉल नहीं रहते हैं. ओके, बहुत सारे डिफरेंस देख के भी पता चलता है. जैसे इसमें वैक्यूल्स बहुत बड़ा है, प्लांट सेल में वैक्यूल्स बहुत बड़े रहते हैं. एनिमल सेल में वैक्यूल्स कंपैरेटिवली बहुत कम होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं. ओके, प्लास्टिड होते हैं प्लांट सेल में, एनिमल सेल्स में नहीं होगा. दैट यू विल गेट फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स. नाउ वी आर कमिंग फॉर द सेल ऑर्गेनेल्स. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसका खुद से एक अपने हिसाब से एक मेमोराइज करने के लिए तरीका होते हैं जहाँ पे आप एक एक सेल ऑर्गेनेल्स का नाम पढ़ोगे. जैसे सेल मेम्ब्रेन. सो हम क्या करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ ही वहाँ पे उसका लोकेशंस एंड फंक्शंस लिख लेंगे. ओके, सो इट इज़ फॉर द सेल्फ स्टडी पर्पस आई एम टेलिंग यू. कैसे याद रहेगा तो उसको उस हिसाब से पढ़ना ही अच्छा होते हैं. सेल मेम्ब्रेन्स क्या होते हैं, इसमें 2 लेयर्स का होते हैं बेसिकली. 2 लेयर्स इन द सेंस इसमें PLP लेयर्स रहते हैं, प्रोटीन, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. सो बेसिकली बाइलेयरिंग्स भी बोला जाता है इसको. ओके, देन इट इज कमिंग फॉर सेल वॉल. सेल वॉल जानते ही हो कि सेल वॉल कहाँ रहते हैं. सेल वॉल बेसिकली प्रेजेंट्स इन द प्लांट सेल और इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. ओके, next gradually I'm just introducing here all the cell organelles. I'll describe in details in the further. Okay, next what is happening, endoplasmic reticulums, what is the function of it, what is the locations of it, what is the structure, how is the structure of it. It is looking like, see, cylindrical दिखता है ये. ओके, ट्यूब की तरह, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ओके, गोल्गी एपरेटर्स. इसको गोल्गी एपरेटर्स क्यों बोला जाता है? गोल्गी एपरेटर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कॉलोनी बना के रहते हैं. ओके, सेल के अंदर इट इज मेकिंग द कॉलोनी, एक साथ रहते हैं तो इसको. नेक्स्ट लाइसोसोम, वैक्यूलाई ऑलरेडी सेड. लाइसोसोम एंड राइबोसोम्स का काम क्या है, इसको सुइसाइड बैग किसको बोला जाता है. ये सारे क्वेश्चंस वेरी कॉमन क्वेश्चंस है बट इट इज कमिंग. Okay, next what is there, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल. इसमें क्यों पावर हाउस बोला जाता है? बिकॉज इसमें एनर्जी स्टोर किया जाता है. कहाँ पे? देखो, स्ट्रक्चर देखने से पता चलेगा. ओके, यहाँ पे कोम लाइक स्ट्रक्चर यू कैन सी हेयर. इट इज हैविंग द कोम लाइक स्ट्रक्चर. जैसे कंगा है, कंगा में है ना कंगी, कंगी में जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, it is also looking like that. See, it is just looking like this. So ये जो portions है ना, ये जो fold है, this fold positions को कहते हैं crest. C-R-I-S, crista, or we are saying it's not crista, pronunciation is crest only. Okay, so A is silent here. This crest, इस portions में क्या होते हैं? ATP store होते हैं. Okay, सो ATP स्टोर होके क्या करेगा? यहाँ पे स्टोर ही रह जाएगा क्या? नहीं, इट इज स्टोर होके फर्दर इमरजेंसी में यूटिलाइज होती है. नेक्स्ट यू गो फॉर द प्लास्टिड. प्लास्टिड भी से प्लांट सेल में ही होएगा. हाँ, कुछ बैक्टीरियाज में होते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरियाज ब्लू ग्रीन्स होते हैं और ग्रीन्स बैक्टीरियाज में होते हैं. जैसे सम बैक्टीरियाज आर प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड, ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया, सो उनमें भी प्लास्टिड रहते हैं. ओके, सो सेल ऑर्गेन्स के बारे में इस चैप्टर में डिटेल्स में डिस्क्राइब किया गया है.